Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel once again. So here I am with another sets of questions, MCQs. ये जो MCQs हैं वो मैं chapter number 6 से लेके आई हूँ and we will discuss about the all MCQs which are the important ones. So let's start. First question is, a messenger acid is 336 nucleotide long, including initiator and termination codons. The number of amino acid the protein translated from this mRNA is. तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं that is about mRNA. ठीक है, ये mRNA है, that is the messenger acid. Now they are telling that this messenger RNA is having 336 nucleotide and out of 336 एक initiator codon होगा और एक termination codon होगा. So what you have to do, आपको पता है कि जो termination codon होता है means the process will stop here. तो we have to deduct and also one codon is equals to 3 nucleotides. So हमें क्या करना है, 336 में से 3 को अगर हम माइनस करेंगे the result will be 3 न्यूक्लियोटाइड एंड एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडॉन रिस्पॉन्सिबल होता है एंड वन कोडॉन इज हैविंग 3 न्यूक्लियोटाइड. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3 एंड द आंसर इज 111. Okay, next question is, while analyzing the DNA of an organism, a total number of 5386 nucleotides were found, out of which proportion of different bases were. Adenine जो है 29% है, Guanine 17%, Cytosine 32% and Thymine 17%. Considering the Chargaffs rule, it can be concluded that, अगर आपको Chargaffs rule याद हो तो Chargaffs rule according to it, G should be equal to C and A should be equals to T and ये जो Chargaffs rule है, it is for double stranded circular DNA, single stranded DNA. अब आपको बताना है ये जो चीज़ है ये किस टाइप के DNA के लिए है. तो फर्स्ट इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA एंड नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. तो अब आपको पता चल गया है कि चार्गफ्स जो रूल है उसमें ऐसा बोला गया है. ठीक है, C इज इक्वल टू G एंड A इज इक्वल टू T एंड दिस अप्लाइज टू डबल स्टैंडर्ड DNA. अब वो सर्कुलर हो या लीनियर हो दैट डजंट मैटर. और आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि एडिनाइन इज नॉट इक्वल्स टू थाइमिन एंड गुआनोसिन इज नॉट इक्वल्स टू साइटोसिन. सो आवर आंसर विल बी सिंगल स्टैंडर्ड DNA. सो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन इज, if Meselson and Stall's experiment is continued for 4th generation in bacteria, the ratio of N15N15, N15N14 and N14N14 containing DNA in the 4th generation would be. So ये जो है DNA के semi conservative nature पे question है. We are having this parental DNA which is N15N15. तो black color is showing N15 वाला. Now this organism has been grown on a medium having N14. Due to semi-conservative nature, replication will occur. These two N15 strand will replicate and now we will get a new strand having N14 on it. ठीक है, N14 strands वाले मिल गए. So again what will happen? This is the first generation. Now we will grow it again on N14. Again replication will occur. अब यहाँ पे आप देखिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब DNA के 4 स्ट्रैंड्स हैं. तो अभी हमें क्या करना है, इनको चारों स्ट्रैंड्स को, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्राइंग लाइक दिस. तो ये हो गया हमारे 4 स्ट्रैंड्स. नाउ अगेन जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो N14 वाले स्ट्रैंड्स बनेंगे. सो हियर आई एम ड्राइंग इट विद द रेड अगेन. So this one is second generation. Now what you are observing in second generation, that 50% is of hybrid and hybrid मतलब एक strand 15 वाला और एक strand 14 वाला.
और 50% जो है वो N14 के स्ट्रैंड्स है। अगेन वी हैव टू गो फॉर द थर्ड जनरेशन, अगेन वी हैव टू सेपरेट ऑल स्ट्रैंड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रेड स्ट्रैंड कितने हैं, 6, आई एम ड्रॉइंग 6 नाउ। N15 स्ट्रैंड्स जो हैं 2 स्ट्रैंड्स हैं। अगेन रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, अगेन द न्यू स्ट्रैंड विच इज सिंथेसाइज्ड विल हैव नाइट्रोजन 14। सो इसमें नाइट्रोजन 14 वाला हो गया ये। चलो मैं फटाफट ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। सो दिस इज द थर्ड जनरेशन। नाउ अगेन वी हैव टू गो फॉर द फोर्थ वन बिकॉज क्वेश्चन में फोर्थ जनरेशन की बात की है। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे रेड स्ट्रैंड जो है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 13 14। सो आई एम ड्रॉइंग 10 strands of 14, 12 एंड जो 2 है वो ब्लैक के स्ट्रैंड है, मतलब नाइट्रोजन 15 के है। So these are of nitrogen 15. So now again replication will occur and now we will again get the nitrogen 14 strand. This will be our fourth generation. Now what you are watching over here, we got 16 strands. आप काउंट करो, ये जो है टोटल 16 strands, 16 molecules हैं डीएनए के। आउट ऑफ 16 जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 14। बाकी के तो मैं इसको ऐसा लिख रही हूं, आउट ऑफ 16 इट इज 2 एंड द रेस्ट इज नाइट्रोजन 14 जिसके हो गए 14। ओके, सो नाइट्रोजन 15 के एक भी स्ट्रैंड फोर्थ जनरेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो हम इसको क्या करेंगे, 1 एंड इसको 7, जस्ट टू सिंप्लीफाई। सो दिस इज द आंसर। सो सच क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू रब इट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, if the sequence of nitrogen based on a coding strand of DNA in a transcription unit is, so ये जो है हमारा coding strand है, आपको बहुत अच्छे से पता है there are 2 DNA strands, जो एक है उसकी polarity है 3 prime to 5 prime and दूसरा है जिसकी polarity है 5 prime to 3 प्राइम। सो जो नया डीआरएनए स्ट्रैंड बन रहा है, एमआरएनए स्ट्रैंड जो बन रहा है, इट विल फॉर्म इन दिस डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हम जब भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं हम कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बात करेंगे। तो यू सी जो पोलैरिटी है कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए की वो सेम है। So the question is, if the sequence of nitrogen based on the coding strand of DNA is this, what will be the sequence of bases on RNA transcript? तो it should be same, जो coding strand का sequence है same sequence mRNA में भी होगा, सिर्फ difference T and U का होता है। So you can match over here AT, so यहाँ पे AT की जगह AU, okay? यहाँ पे U, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन इज दिस। नाउ इफ वी मैच दिस AUG AAUG, it is same what coding strand is having, so A will be the answer। हमेशा याद रखना ये जो वर्ड्स हैं इन पे ध्यान देना, यहाँ पे कोडिंग लिखा है, नॉन कोडिंग लिखा है, टेम्पलेट लिखा है, अकॉर्डिंगली you have to answer this question, these type of questions. Next, this is the simple direct question. The equivalent of structural gene is, आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से ये लाइन लिखी हुई है कि स्ट्रक्चरल जीन का इक्विवेलेंट होता है सिस्ट्रॉन। दैट इज वाई इफ यू रिमेंबर पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन हैं, ZYA, पॉलीसिस्टोनिक सेगमेंट या पॉलीसिस्टोनिक जीन्स कहते हैं, वेयर एज जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मोनोसिस्टोनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सी अर्चिन DNA
which is double stranded. 17% of the bases were shown to be cytosine. The percentage of other 3 bases expected to be present in DNA are. तो यहाँ पे आपको चार्गफ्स रूल अप्लाई करना है. चार्गफ्स रूल मतलब C is equal to G and A is equal to T. So if you will see कि 17% अगर C है तो G भी 17% होगा. तो 17 plus 17 will be 34. तो 34% जो है वो G and C हो गया. बाकी जो बचा that will be A and T. तो बाकी जो बचता है that is 66%. तो जिसमें से 33% A होना चाहिए और 33% जो है वो T होना चाहिए. So our answer is, if you will see, our answer is A. Next question, तो ये बहुत common question है नीट का. Next question is, this is also a very direct question. Which enzymes will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in LAC-Y gene? तो ये LAC-Y gene जो है ओपेरॉन का जीन है, ओपेरॉन का स्ट्रक्चरल जीन है. नॉनसेंस म्यूटेशन वो म्यूटेशन होता है जो किसी भी कोडॉन को नॉनसेंस कोडॉन में कन्वर्ट कर देता है. सो आपको पता है देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA. सो क्योंकि Y में नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया है तो यहाँ पे जो कोडॉन है दैट विल बिकम नॉनसेंस एंड देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन आफ्टर देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन. Z के बाद YA का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. द प्रोसेस विल स्टॉप ओवर हियर. सिर्फ Z का ही ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा. सो यहाँ पे क्वेश्चन है विच एंजाइम और एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सेल. इट इज जस्ट बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्योंकि वो Z का प्रोडक्ट है. सो यहाँ पे आपको बहुत सोचने की जरूरत है. सो इन है ना, इन मतलब Y वाला प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिमूवल ऑफ RNA polymerase 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस. अभी न्यूक्लियोप्लाज्म बोला है तो यूकैरियोटिक की बात हो रही है. सो रिमूवल ऑफ पॉलीमरेज RNA polymerase 3 from nucleoplasm will affect the synthesis of tRNA क्योंकि polymerase 3 is responsible for secretion or synthesis of tRNA. This is the direct question. Next question, select the correct statement from A to D about lactoperon. First option is glucose or galactose may bind with repressor and inactivate it. तो आपको नाम से ही पता चला ये लैक्टोज वाला है. सो यहाँ पे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बाइंड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको पहले से ही रॉन्ग ऑप्शंस को इग्नोर करते जाना है ताकि आपको लास्ट में ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में दिक्कत ना हो. आप अगर ये ए सिलेक्ट करने के बाद ये देखोगे तो दिक्कत आएगी. सो डायरेक्टली गो विद द कंटेंट फर्स्ट. In the absence of lactose, the repressor bind with the operator region. Exactly correct. Z gene codes for permease. No, beta galactosidase के लिए करता है. And this is elucidated by Jacob and Monod. This is exactly correct option. So B and D is correct. So we can see here this is the right option. So इस तरीके से आप जल्दी से कोई भी क्वेश्चंस को है वो सॉल्व कर पाएंगे. सो हियर वी आर विद आवर लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड? फर्स्ट इज इट इज डीजेनरेट. डीजेनरेट मीन्स फॉर वन अमीनो एसिड मेनी कोडॉन आर कोडिंग. सो दिस इज राइट. छोटा सा टिक लगा रही हूँ. इट इज नियरली यूनिवर्सल. ऑब्वियसली हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी कोडॉन की बात करते हैं तो दैट कोडॉन विल गोइंग टू कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड. जैसे अगर AUG मिथ्योनिन प्रोकैरियोट्स में है तो वो यूकैरियोट्स में भी मिथ्योनिन के लिए ही कोड करेगा. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अ कोड इज इन mRNA इज रीड इन अ नॉन कंटिग्यूअस फैशन. मतलब कंटिन्यूएशन में रीड नहीं किया जाता. गलत है. हम हमेशा कंटिन्यूएशन में ही उसको रीड करते हैं. जैसे AUGGCA तो इस कंटिन्यूएशन में ही हमको इसे रीड करना होता है. इट इज अनएम्बिग्यूअस. सो
Unambiguous means the codons are very specific. One codon codes for one amino acid only. So this is correct. So here the option is the option is which is not true for genetic code is this C. So answer is C. तो इस तरीके से ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द नीट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. We are meeting in the next with more questions for more practice. So keep practicing, have faith in yourself, keep working. Goodbye, take care.